discussed many things about uniform acceleration motion. What is uniform acceleration motion? A motion in which the acceleration of a particle is constant is called a uniform acceleration motion, we have seen. Moreover, acceleration of a particle, though is defined as rate of change in velocity, we should modify the sentence saying acceleration is not defined as rate of change in velocity, it is given by rate of change in velocity. In fact, acceleration is the cause, change in velocity is the effect. And what is the cause of acceleration? We have seen it is the force. When a force acts on a body, the body accelerates. Unless until a force acts, the body will not accelerate. So the acceleration is force by mass, and the acceleration will be constant only if the force acting on the body is constant. So in short, a body is said to be uniform acceleration motion if it is driven by a constant force. Fine. Now whenever a body is in motion, we have to carefully observe what are the forces acting on the body, what is the net force. If the net force means sum of all forces, if the net force or the resultant force is constant in magnitude as well as direction, the body will definitely undergo uniform acceleration motion. Also we have seen uniform acceleration motion may be along a straight line, may be along a two-dimensional plane or three-dimensional plane. Our discussion was the motion along one dimension or motion along straight line. Last class we have seen for uniform acceleration motion along one dimension or straight line, we have seen many things. V is equal to U plus AT, that everyone knows, we have derived also. S is equal to UT plus half AT square, and V square is equal to U square plus 2AS. Also we have seen the average velocity between two instants is V1 plus V2 by 2, which was otherwise the total displacement by total time. ये सारा चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। इतने सारे चीजों के ऊपर बड़े खूंखार क्वेश्चंस बन सकते हैं, बड़े खूंखार क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपको स्कूल में भी ये सारे क्वेश्चन को लेकर काम करवाएंगे। जबकि इसके अलावा हमें और भी ढेर सारे फॉर्मूले देखना है, बट हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर S क्या है, V क्या है, U क्या है, ये सब चीज हमें समझ में आना चाहिए। U was taken as the initial velocity of an interval, V was the final velocity of the interval. ध्यान रहे, at your school level S is treated as distance, लेकिन हम लोग देखेंगे आगे डिस्टेंस लेंगे तो फंस जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, डिस्टेंस लेके करेंगे, काफी जगह गड़बड़ आंसर निकलने लगेगा। S is displacement. ध्यान रहे, in the expression of V square is equal to U square plus 2S, S is equal to UT plus half AT square, S is the displacement. Okay. Now this is what is the thing we have seen. Now we want to see some extra points, that is displacement in nth second of motion. Nth second of motion. Try to understand. Supposing a particle is moving along a straight line with constant acceleration. That acceleration may be positive, may be negative. I don't say retardation, I say negative acceleration. Means the speed is decreasing. Constant acceleration. The VT diagram has to be a straight line. Anyway, now at certain instant initially, its initial velocity was, say at t is equal to 0, initial velocity is u. Now in say 3 seconds, in 3 seconds
the particle reached here, and in 4 seconds the particle reached here. The particle was here at t equal to 3. The particle was here at t equal to 4. I say this is nothing but the displacement in 3 seconds. This is nothing but the displacement in 4 seconds. So if this is the displacement in 3 seconds, this is the displacement in 4 seconds, I want to know what is the displacement in the 4th second. You must understand the difference between 4 seconds and 4th second. इन 4 सेकंड में वो यहां से यहां तक गया है. 4th सेकंड में, 4th सेकंड मतलब पहला सेकंड हुआ t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1, दूसरा सेकंड हुआ t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2, तीसरा सेकंड हुआ t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3, चौथा सेकंड हुआ t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 4. 4 घंटे में 4th आवर में आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो आप क्या कहोगे? डिस्टेंस मूव्ड इन द 4th सेकंड ऑफ मोशन. Distance moved in the 4th second of motion is this is 4th. समझ में आया क्या? इसका मतलब the distance moved in the 4th second of motion is nothing but distance moved in 4 seconds minus distance moved in 3 seconds. So simple है ना? ठीक है. Similarly, अगर हमें निकालना पड़ेगा what is the distance moved in 9th second of motion, तो क्या करना पड़ेगा? Distance moved in 9 seconds minus distance moved in 8 seconds. The distance moved in 9th second of motion can be found. Okay, again, so if I say Sn, I want to find out displacement in nth second of motion. So I will find displacement in n second of motion and displacement in n minus 1 second of motion. Let we use symbols Sn minus 1 is displacement in n minus 1 second. Sn displacement in n second. तो nth हो गया displacement in nth second of motion, and obviously you can correlate them all. You say displacement in nth second of motion is displacement in n seconds minus displacement in n minus 1 second. शायद यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. ठीक है. Now Sn क्या था? Sn is the displacement in n seconds. किसका? पार्टिकल का. कौन सा पार्टिकल का? जो u वेलोसिटी में चलना शुरू किया और मूव करने लगा विथ एन एक्सीलरेशन a, उस पार्टिकल का. अच्छा, ये पार्टिकल. तो पार्टिकल n सेकंड में कितना दूर जाएगा? जिस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सीलरेशन a है, t सेकंड में कितना दूर जाता है? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. तो वो पार्टिकल n सेकंड में कितना दूर जाएगा? यू विल से s इज इक्वल टू u इनटू n प्लस हाफ a n का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड. अब वो n माइनस 1 सेकेंड में कितना दूर गया होगा? इट इज u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर. आगे की सिंप्लीफिकेशन आप लोग कर सकते हो. जस्ट एक्सपांड ईच टर्म, एड देम अप, सिंप्लीफाई, विल फाइंड इट इज u प्लस a by 2 इंटू 2n माइनस 1. ये आप कर सकते हो. ये क्या है? Displacement in nth second of motion. This becomes another very important formula जो हम बार बार यूज करेंगे. u प्लस a by 2 इंटू 2n माइनस 1. ठीक है. तो हमारे
फॉर्मूला का लिस्ट में आ गया क्या, एक नया टर्म nth, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। अभी हम देख लिए कितने, 5 फॉर्मूले। मुझे आपको बताना है और 3 फॉर्मूले। ओ और भी 3 है क्या? हाँ और भी 3 है, बड़े इंटरेस्टिंग फॉर्मूले। वो सारा फॉर्मूला का यूज करने से क्या होता है, जब आप कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन को करोगे वो चुटकी में बनेगा, पूरा चुटकी में बनेगा विदाउट अप्लाइंग मच कैलकुलेशन। देख के उसको चुटकी में आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। वो सारा फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग इतना फॉर्मूला देखें, थोड़ा ये सब फॉर्मूला मास्टर हो जाने के बाद हम लोग दूसरे फॉर्मूले को भी यूज करेंगे। सो ये हो गई आज की फॉर्मूले की लिस्ट। ये 5 फॉर्मूले के ऊपर हम लोग कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, नो ट्रिकी नो टेक्निक क्वेश्चंस। देखना है कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना आता है क्या। तो मैं सबको मिटाता हूं, सबको मिटाता हूं। अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करना शुरू करेंगे। सारा फॉर्मूला सबको याद हो गया। आप मनी मन में एक बार बोल सकते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, नहीं, और एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड ऑफ मोशन इज u प्लस a/2 into 2n minus 1। सारा फॉर्मूला याद रहेगा, तब जाके आप इसको फटाफट कर पाओगे। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, a train moving with constant acceleration reaches a lamp post, with 6 meter per second, and after 10 seconds, 20 seconds, it leaves the post with 12 meter per second. What is length of the train? अरे ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो गया सर, ऐसा चीज तो आप कभी बोले नहीं थे। आप जब करते हैं इजी कर लेते हैं, हमको जब देते हैं डिफिकल्ट देते हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माय जॉब इज टू एक्सपोज यू टू ऑल पॉसिबल डिफिकल्टीज दैट मे कम अक्रॉस योर वे। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई करते रहिए, शुरू हो जाइए। वी डोंट हैव टाइम टू वेट फॉर एनीवन, कीप ट्राइंग। क्वेश्चन नंबर 2, if a particle moving with constant acceleration 4 meter per second square moves 60 meters in 5 seconds. Find what was its initial velocity. ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे कोचिंग दे रहा हूं, कोई ट्रिक टेक्निक नहीं, खाली फॉर्मूला आपको यूज करना आता है क्या? आता है। Question number 3, a ball was dropped from a high tower find the distance moved by it
in fifth second of motion. Take acceleration due to gravity is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास अभी 3 क्वेश्चन हो गए और आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। अब इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। Only one you have told. Let's see. Solution में a train moving with constant acceleration reaches a lamp post with 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कोई लैंप पोस्ट था, ट्रेन आ रहा था कांस्टेंट एक्सीलरेशन में। जब वो आके पहुंचा लैंप पोस्ट के पास तब उसका स्पीड था 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ट्रेन चलता रहा। कुछ समय के बाद लैंप पोस्ट को छोड़ के आगे निकल गया। जब वो लैंप पोस्ट को छोड़ के आगे निकल गया तब उसका स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड था। Oh, and it took how much time for it? It took 20 seconds. It took 20 seconds. While crossing the post, S distance moved is equal to how much? Length of train. हाँ, ये समझ में आया। Is equal to distance moved is length of train. T is 20 seconds. Average velocity you know is given by v1 plus v2 by 2. Average velocity is otherwise given by displacement by time. So v1 plus v2 by 2 implies s कितना था वही तो पता करना है। t कितना था 20 seconds. v1 plus v2 6 plus 12 by 2 तो s कितना हो गया? It is coming out to be 180 मीटर। Solution of number 1। आप लोग कैसे किए हो मुझे मालूम है। आप लोग क्या किए? इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, so you got the acceleration। Once you got the acceleration, you can make use of the formula v square is equal to u square plus 2s or s is equal to ut plus half t square, है कि नहीं? But see how I am thinking. My way of thinking is something different. Is it not looking easier than that of your approach? Yes, it must be. Yes, so that is the way we learn. तो आपको समझ में आ गया कि हमें v1 मालूम है, v2 मालूम है, t मालूम है, s निकालना हमारे लिए क्या बड़ी चीज है। बस देख पाना चाहिए कि अंदर हो क्या रहा है। Now we go for question number 2, solution number 2। तो solution number 2 में हम देखेंगे solution number 2 क्या देखेंगे? A particle moving with constant acceleration 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई ट्रिक टेक्निक नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मूव से डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर इन 5 सेकेंड्स। टाइम दिया है 5 सेकेंड्स। पूछा है बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है। क्या इन लोगों को लेके हमारे पास कोई रिलेशन है? एस ए टी यू, हाँ एक है। कौन सा है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू नो एवरीथिंग हियर। यू इंटू 5 प्लस हाफ ए हो गया 4 इंटू 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी वाज 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई दम नहीं है, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला था, सबको आता है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 में ए बॉल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ड्रॉप्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। एज द बॉल फॉल्स डाउन इन द 5th सेकंड इट मूव्स अ सर्टेन डिस्टेंस। You say that is the distance moved in 5th second of motion. Now what was the initial velocity? 0. What was the acceleration? 10 meter per second square. Displacement in 5th second of motion is u plus a by 2 into 2n minus 1. 5th second मतलब you know, चलो n second लिखते हैं।
n second is 2n minus 1. तो displacement in 5th second it is u plus a by 2 into n के जगह 5. तो वैल्यू डालें, u था 0, a था 10 into ये 10 minus 1 is 9. So it is 45 meters. So in the 5th second of its motion, it must have moved a distance of 45 meters. समझ में आया? ठीक है. 3 more questions for you. A ball was thrown down from a roof of height 20 meter. सॉल्यूशन को थोड़ा ध्यान से देखिए. 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. कोई रूफ है जिसका हाइट है 20 मीटर. 20 मीटर हाइट से कोई बॉल को फेंका गया नीचे विथ 15 मीटर पर सेकेंड. और ये कितना नीचे था? 20 मीटर. पूछा कितना जोर से नीचे आके मारेगा. इनिशियल वेलोसिटी 15, फाइनल वेलोसिटी 20. फाइनल वेलोसिटी पता करना है. एक्सीलरेशन we found it is coming out to be 10 meter per second square. Displacement is 20 meter. अब इनके बीच में कोई रिलेशन है? हाँ, v स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है. क्या भी निकालना है? हाँ निकालना है. निकल जाएगा. कितना हुआ v स्क्वायर? इट इज 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 होल रूट ओवर इज v एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 25 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि दिस पूरा चीज आ गया 400 200 400, ये 225 625. 625 का रूट ओवर तो 25 ही होता है. तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड. सॉल्यूशन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या दिया है? पार्टिकल स्टार्ट्स विद 6 मीटर पर सेकेंड एंड इन ए टाइम ऑफ 8 सेकेंड्स व्हाट हैपेंस? इट डबल्स इट्स वेलोसिटी. मतलब 6 के जगह हो गया 12. पूछा है एक्सीलरेशन बताओ. ओहो, ये तो कोई भी बता सकता है. कितना होता है एक्सीलरेशन? 12 minus 6 by 8. कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 6 by 8 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाँ, ये तो सिंपल था. फिर पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड. यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस यूजिंग व्हिच फॉर्मूला. आप कौन सा फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकालोगे? यू कैन मेक यूज ऑफ AC इक्वल टू UT प्लस हाफ d स्क्वायर. यू कैन मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s. यू कैन मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. कौन सा सबसे आपके लिए आसान रहेगा? यू से डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? ये पीरियड में इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 इनटू टाइम. इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 6 प्लस 12/2. टाइम दिया 8 सेकेंड का. बन गई काम. इट इज 72 मीटर. आप किसी भी तरीके से कर सकते हो. मुझे लगा कि मैं अगर एवरेज वेलोसिटी निकाल के करूंगा तो मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा. द कैलकुलेशंस बिकम सिंपलर and I can make it orally also. Using other two formula orally करना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए. आपके लिए आसान हो सकता है. But then see, I found this to be easier. Now we go for question number 6. Question number 6. हाँ. No. ये चलो देखते हैं. ठीक है. Let us see. We'll check. I don't know the values. तो हम जानते हैं कि solution question number 6 का solution of number 6. हम जानते हैं कि displacement in the nth second of motion is given by u plus a by 2 into 2n minus 1. और यहाँ पर the particle starts from rest. Here u is equal to 0. अच्छा, displacement in 5th second of motion.
डिस्प्लेसमेंट इन 9th सेकेंड ऑफ मोशन इज, u तो 0 है, इट इज ओनली a/2 into 2 into 9 minus 1. Displacement in the 5th second of motion is a/2 into 2 into 5 minus 1. Divide s 9th by s 5 5th is equal to a/2 गया, ऊपर हो गया, ये 18 minus 1 is 17, ये हो गया 10 minus 1 is 9. Now displacement in 9th second of motion, कौन सा समय में? 9th second में, is 17 by 9 into displacement in 5th second. 5th second में कितना गया था? 25 मीटर. Just multiply 17 into 25 be 9 meters. ऐसे करके मैं आंसर निकाल दिया. क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया? Yes, sir. Yes. We look at question number 7. A block thrown on a rough floor with 10 meter per second stops in 8 seconds. ऐसा कैसा हुआ? ऐसा ही तो होता है. अगर कोई रफ फ्लोर पे कोई ब्लॉक को आप 10 मीटर पर सेकेंड में फेंकोगे तो जाएगा यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ से चलेगा यहाँ पे आके कहीं रुक जाएगा, यहाँ पे कहीं यहाँ पे रुक गया. कितने समय के बाद? 8 सेकेंड के बाद. अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको मिला 8 सेकेंड और रास्ते में उसका एक्सीलरेशन हो रहा था कि रिटार्डेशन हो रहा था? रिटार्डेशन हो रहा था. नहीं, रिटार्डेशन हो रहा था. क्यों? बिकॉज ऑफ सम फोर्स. बिकॉज ऑफ सम फोर्स, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. तो स्लाइडिंग कर रहा था तो कुछ फ्रिक्शनल फोर्स था. तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्लाइडिंग मोशन. एज द बॉडी अंडरगोज uniform retardation, average velocity is equal to initial velocity plus final velocity by 2. यहाँ पर initial velocity क्या था? 10, finally रुक गया है 0 by 2 is 5 meter per second. लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम. एवरेज वेलोसिटी निकल चुका है 5 मीटर पर सेकेंड और ये कितना समय के लिए जा रहा था? 8 सेकेंड्स. मल्टीप्लाई 8 सेकेंड, इट इज कमिंग आउट टू बी 40 मीटर. देखो कितना मजा आया. ये जो एवरेज वेलोसिटी वाला फंडा बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट मिस इट. नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो ये हो गया आपका 40 मीटर. द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज 40 मीटर. ठीक. लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में मैं कुछ ऐसे करूंगा. टू पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स. हाँ, दो पार्टिकल है. सॉल्यूशन टू नंबर 8. यहाँ पे एक पार्टिकल है A, नाम इसका A है, ये इसका नाम B है. अब दोनों के बीच में डिस्टेंस था 100 मीटर. तो बोले कि ये इधर चलने लगा, ये इधर चलने लगा. दोनों आके कहीं यहीं पे एक दूसरे से मिले. कहाँ पे मिले? यहाँ पे मिले. अच्छा, बोला कितने समय के बाद? लेट दे मीट आफ्टर T सेकेंड्स. हाँ, तो हमें T निकालना. T निकालना. तो ये T सेकेंड में A कुछ दूर गया होगा, B भी कुछ दूर गया होगा. And we clearly see the relation between SA and SB. Here SA plus SB is 100 meter. हाँ, ये बात तो तय है, सब जानते हैं क्योंकि एक दूसरे से 100 मीटर दूरी से आ रहे थे. अच्छा, व्हाट इज SA? डिस्टेंस मूव्ड बाय A इन T सेकेंड्स. जिसका इनिशियल वेलोसिटी A के लिए क्या था? फॉर A इनिशियल वेलोसिटी वाज 6 मीटर पर सेकेंड. एक्सीलरेशन वाज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
तो एस ए क्या हो गया, इट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू टी 60 प्लस हाफ इंटू 2t स्क्वायर, तो हो गया 6t प्लस टी स्क्वायर। फॉर बी u was 14 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे ही आप निकाल सकते हो, इट इज 14t माइनस टी स्क्वायर। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 क्या मिला, एस ए प्लस एस बी, एस ए हो गया 6t प्लस टी स्क्वायर 14t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अरे ये तो टी स्क्वायर एक दूसरे को खा गए, मिला 20t इज 100 और t इज 5 seconds, so they will meet after 5 seconds। क्या चीजें समझ में आया या फिर ऊपर से गया? यस 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 यस, समझ में आ गया। क्या दिया है, a body slides from rest and moves 4 meter in first second। ये कोई बॉडी यहाँ से स्लाइड कर रहा है, if it moves 4 meter in 1 second, then if it reaches ground in 3 seconds, find the total length। सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन क्या कहेंगे, let acceleration is a, हाँ ठीक है, acceleration is a, here u is 0, ये हमें दिया गया है, displacement in 1 second, in 1 second, s is equal to u into 1 plus half into a into 1 का स्क्वायर, और u तो 0 है, हाफ a 1 का स्क्वायर मतलब 1, एंड s का वैल्यू दिया है 4 मीटर, इसका मतलब a इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे पता चल गया कि a इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, नाउ लेंथ ऑफ द इंक्लाइन s a to b, अगर हम a to b मोशन को देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन 8 है, हमें s का वैल्यू l है और हमें पता करना है, और टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है a to b आने के लिए 3 सेकेंड्स। अब हमें l निकालना है, l निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, s का वैल्यू है l ut, इसका मतलब l कितना आ जाएगा, u का वैल्यू तो 0 है, हाफ a हो गया 8, t हो गया 3 का स्क्वायर, so it is 36 meter। So the length of the incline is looking to be 36 meter। कितना सिंपल है, तो कोई भी निकाल सकता है। A train of length 100 meter starts from rest। एक ट्रेन था जिसका लेंथ था 100 मीटर, रेस्ट से स्टार्ट किया, मूव किया विथ इनिशियल वेलोसिटी 0 बट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आदमी पीछे से निकला और भागने लगा, कितना, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम रियर एंड ऑफ ट्रेन एंड रन्स टुवर्ड्स इंजन विथ 25 मीटर पर सेकंड। आदमी भागने लगा, क्यों इतना जोर से भागने लगा, गेस करके बताओ। इसका कोई रिलेशन रह गया था इंजन में? नहीं, बटुआ छोड़ दिया था इंजन में। क्या हुआ कि इतने जोर से वो भागने लगा? भागते 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 आके यहाँ पे पहुंच गया इंजन के पास। तब तक ट्रेन गया है यहाँ से, ये डिस्टेंस आई कॉल इट डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन एंड दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द मैन। मैन रन्स विथ 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो लेट
reaches engine after t seconds। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? A train of length 100 meters starts from rest and moves with constant acceleration 2 meters per second square। A man starts from rear end, ट्रेन के पीछे से शुरू किया, rear end, back end of train and runs towards engine with 25 meters per second। After what minimum time he will reach the engine? मान लेते हैं कि वो t सेकंड बाद पहुंचेगा। जब ये t सेकंड में पहुंचेगा, ऑब्वियसली जो मैन है he must have run more distance as compared to the train। और कितना एक्स्ट्रा? 100 मीटर। मैन कितना गया होगा? वो 25 मीटर पर सेकंड में भाग रहा था, तो t सेकंड में गया होगा 25 माइनस t। और ट्रेन कितना गया होगा? ut प्लस हाफ ए स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सिंपलीफाई करें तो 25t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। और थोड़ा सा और मार्केट करोगे तो मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। हाँ, ये हो गई। अब यहां से मुझे t निकालना है, यहां से मुझे t निकालना है। यू नो द रूल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। t का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और यहाँ पर b के जगह क्या लेंगे? 25, तो लिखेंगे क्या? माइनस ऑफ माइनस 25 प्लस और माइनस माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a हो गया 1, c हो गया 100, हाँ, बाय 2a, 2 हो गया, a तो हो गया 1। So it is coming out to be 25 plus or minus 625 minus 400, 225 whole root over is 15 by 2, and that way if you take plus value it is 40 by 2 is 20 seconds, nahin? And if you take minus value it is 25 minus 15, that is coming out to be 10 by 2 is 5 seconds। अब समझने वाली चीज है, मिनिमम टाइम 5 सेकेंड। आंसर हो गया, we will reach here 5 सेकेंड। But let us try to understand what does the other answer present। अगर t equal to 5 सेकेंड में पहुंचा, ये भी सही है, t equal to 20 सेकेंड में पहुंचा, ये भी सही है, तो दोनों कैसे सही हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। सर कैसे सर? वो कब पहुंचा इंजन के पास? t equal to 5 सेकेंड में, फिर से पहुंचा t equal to 20 सेकेंड में। ऐसा कैसा होगा? ऐसा सोचो क्या हो रहा है? हो यूं रहा है कि ये है ट्रेन, ठीक है, ये आदमी यहां से भाग रहा है कितने में? 25 मीटर पर सेकेंड में ट्रेन भाग रहा है। तो क्या हुआ? आदमी ने दौड़ दौड़ के आके ट्रेन के पास पहुंचा, इंजन के पास। ये सब कुछ इंजन है, हाँ, तो ये इंजन के पास पहुंचा यहाँ पे आदमी। जब पहुंचा कितनी सेकेंड के बाद? 5 सेकेंड के बाद। कितना समय हुआ था? t इक्वल टू 5 पे। तब तक आदमी भागते हुए आ रहा था और मान लो कि वो इंजन में घुसा नहीं और आगे निकल गया। आदमी भागते भागते आगे निकल गया, इंजन पीछे रह गया और ट्रेन से भी आगे निकल गया, लेकिन ट्रेन तो एक्सीलरेट कर रहा था, तो आदमी आगे जा रहा था भागते भागते, है ना? और ये ट्रेन दौड़ाते दौड़ाते थोड़ी समय के बाद फिर से उसके पास आया। The man is near the engine twice। पहली बार वो खुद इंजन के पास पहुंचता है, इंजन में चढ़ता नहीं, आगे भाग जाता है, फिर इंजन दौड़ के जाके उसके पास पहुंचता है, because the engine was accelerating। Are you getting? So they meet each other twice। 2 बार एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है, 2 बार एक दूसरे के साथ मिलते हैं। They are at t equal to 5 second and t equal to 20 second। So what is the smaller time, minimum time for which they meet? They meet, he reaches the engine after 5 seconds। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया हूं? वो आदमी दौड़ते दौड़ते इंजन के पास आया, इंजन के पास आने के बाद रुका नहीं, भागता रहा, भूल गया मुझे इंजन में चढ़ना है, फिर तो ट्रेन पीछे रह गया, लेकिन ट्रेन एक्सीलरेट कर रहा है। थोड़ी समय के बाद आके ट्रेन इसके पास फिर से पहुंचा। चलिए अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। A man starts
फ्रॉम रियर एंड। सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और मैं देखूंगा कि आप इसको कमेंट में, YouTube की कमेंट में इसका आंसर दो, कौन क्या क्या सही आंसर देते हैं। A train of length 100 meters starts from rest and moves with constant acceleration 2 meters per second square. A man starts from rear end of train and runs towards engine with v meter per second. ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v for which he can reach the engine। आपको बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ v, मतलब अब ट्रेन भाग रहा है, आदमी पीछे से दौड़ने लगा, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे जाएगा तो कहां पहुंच नहीं पाएगा। ट्रेन इतना लंबा है, ट्रेन छूट गया है, एक्सीलरेट कर रहा है और ये आदमी धीरे धीरे दिमाग के जाएगा तो कहां ट्रेन पकड़ पाएगा। कम से कम कितना स्पीड में इसको दौड़ना चाहिए कि इंजन को पकड़ पाएगा। बहुत ज्यादा स्पीड में दौड़ेगा तो पकड़ लेगा, जैसे हम देखें अभी 25 मीटर पर सेकंड में दौड़ रहा है तो ही इज रीचिंग द इंजन ट्वाइस, इवन ट्रेन को पार करके निकल जा रहा है। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर व्हिच ही कैन रीच द इंजन। आप इसको करो और वीडियो के नीचे कमेंट में अपना अपना आंसर प्रेजेंट करो, देखता हूं किसका आंसर सही हो रहा है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।